وقت نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا تھا۔ مجھے اپنے خاندان سے دور ہوئے 20 سال گزر گئے تھے۔ میں ایک خواہشوں اور امیدوں بھرا نوجوان تھا۔ میرے ماں باپ نے میری شادی ایک نہایت ہی نیک اور اچھی عورت سے کروائی جس کا نام سکینہ تھا۔ ہمارے کچھ خواب تھے، کچھ خواہشیں تھیں۔ جب شادی کے پہلے سال ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹے سے نوازا تو ہم نے بھی ارادہ کر لیا کہ اپنی اولاد کے لیے دنیا کی ہر چیز فراہم کریں گے۔ پاکستان میں میرا کام بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ میں بہت کم پیسے کماتا تھا۔ سوچا کہ باہر کے ملک چلا جاؤں گا، 2-4 پیسے زیادہ کماؤں گا۔ 4-5 سال پریشانی ہوگی، لیکن 4-5 سال کے بعد جب واپس آؤں گا تو زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اپنی بیوی کو اپنے بھائیوں اور ماں باپ کے حوالے کر کے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اکیلی تو نہیں ہے، ہم سب اس کے ساتھ ہیں، تم چلے جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بچوں سے نواز دیا تھا۔ میرے 3 بیٹے تھے، شادی کو 4 سال ہوئے تھے اور اس کے بعد میں باہر کے ملک چلا گیا۔ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے دل پہ پتھر رکھ کے مجھے روانہ کیا تھا۔ کہتی تھی کہ آپ کے بغیر ایک دن بھی 1 سال کی طرح گزرے گا، پھر یہ صدیاں کیسے تمام ہوں گی۔ اس نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں اداس ہوں لیکن آپ کا ساتھ دوں گی۔ آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ میرے پاس بیٹھی رہیں، میری آنکھوں میں دیکھتے رہیں، لیکن اپنی زندگی میں کچھ نہ کریں، بس مجھے روز یاد کر لیجیے گا۔ میں اس کے سامنے ایک آنسو نہ رویا، لیکن جب سے جہاز میں بیٹھا تھا تب سے میری آنکھوں سے آنسو ہی بہتے جا رہے تھے۔ بار بار اپنی بیوی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا باپ جا رہا ہے تو پتہ نہیں کب واپس آئے گا۔ یہ پرانا زمانہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں 2 سال بعد واپس آؤں گا، لیکن جب بھی واپس آنے لگتا میری ماں کہتی کہ ابھی واپس نہیں آؤ، جو پیسے تم ٹکٹ کے لیے بھیجو گی ان سے کچھ اور کر لیں گے۔ میری بہنیں تھی، بھائی تھا، میں نے سب کی شادیاں کروائی، گھر بنوایا۔ اپنی ماں سے پوچھتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو ماں کہتی تھی کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے۔ بیوی بھی کہتی تھی کہ سب ٹھیک ہے، بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، گھر بن رہا ہے اور مجھے گھر کا سب سے بڑے والا کمرہ بھی دیا ہوا ہے۔ میں بھی مطمئن رہتا تھا۔ بس کرتے کراتے وقت گزرنے لگا۔ جب بھی واپس آنے کا خیال دل میں لاتا کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا۔ اس طرح کچھ موذی بیماریاں بھی ابھرنے لگی جن کی وجہ سے آنے جانے میں بہت مسئلہ ہوا، اور بس پھر زندگی ایسی ڈگر پہ چل پڑی کہ میں اپنے کام کا ہی ہو کے رہ گیا۔ واپس آنے کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا، یا زندگی اسی طرح گزرتی رہی۔ آج جاؤں گا، کل جاؤں گا۔ بیوی بھی جیسے مجھے بھول ہی گئی۔ اب وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ تمہاری یاد آتی ہے، تم کب آؤ گے؟ پتہ بھی نہ چلا کہ وقت نے کیسا ستم کیا اور پورے 20 سال گزر گئے۔ اب میں ریٹائر ہو گیا اور واپس آنے کے بارے میں سوچا واپس آ رہا تھا تو سب کچھ یاد آ رہا تھا، اپنی بیوی، اپنے بچے۔ اب تو گھر میں فون بھی لگ گیا تھا، فون پہ بھی بات کرتا تھا، لیکن ان کو دیکھے ہوئے تو اتنا عرصہ ہو گیا تھا۔ یہ وقت بہت اچھا تھا، نئی نئی ایجاد ہو رہی تھی۔ سنا تھا ایک بڑا سا فون بھی آ گیا ہے جس میں آپ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ سوچا کہ اپنی بیوی کے لیے وہ فون لوں گا، پھر سوچا کہ اب مجھے اسے فون لے کر دینے کی کیا ضرورت ہے، اب تو میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اپنے گاؤں میں داخل ہوا تو سوچ رہا تھا کہ سب سے بڑا گھر تو میرا ہی ہوگا۔ اتنے پیسے بھیجے تھے میں نے، اور میری ماں نے کہا تھا کہ وہ سب سے بڑا گھر بنا رہی ہے۔ گاؤں میں داخل ہوا ہی تھا کہ پرانی یادوں نے آ کر گھیر لیا۔ بس دماغ میں یہی مناظر چل رہے تھے کہ بچے دیکھیں گے تو گلے سے لگا لیں گے، بیوی کو دیکھوں گا تو کتنی خوشی ہوگی۔ 20 سال گزر گئے، پر جب اسے چھوڑ کر گیا وہ صرف 17 سال کی تھی۔ ابھی بھی میرے لیے تو وہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہوگی، اور اب کہیں نہیں جاؤں گا، بس ہمیشہ اسی کے ساتھ رہوں گا۔ زندگی نے بڑا ہی ظلم کیا، ذمہ داریوں نے ایسا جکڑا کہ واپس نہ آ سکا، لیکن اب جتنے دن بھی زندگی کے باقی ہیں اپنی بیوی کے ساتھ ہی گزاروں گا۔ یہی سوچتا سوچتا چلتا آ رہا تھا، کسی کو بتایا بھی تو نہیں تھا کہ باہر کے ملک سے واپس آ رہا ہوں۔ سوچا تھا سب کو حیران کر دوں گا، گھر میں داخل ہوا تو حیران ہی رہ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ گاؤں کا سب سے بڑا گھر میرا ہوگا، لیکن گھر تو ابھی بھی ویسا ہی لگ رہا تھا، بس کمرے پکے کروائے گئے تھے، دیواریں آج بھی کچی تھی، صحن میں فرش نہیں لگوائے گئے تھے۔ میں حیران رہ گیا۔ میری ماں سامنے بیٹھی تھی، اس نے مجھے دیکھ لیا اور گلے سے لگا لیا۔ خوشی کے آنسو برستے، پرانے دن یاد آ گئے۔ میں نے کہا کہ امی، یہ گھر کو کیا کیا ہے؟ میں نے تو اتنے سارے پیسے بھیجے تھے،
आप लोगों ने घर नहीं बनवाया? तो मेरी माँ ने कहा कि 2 घर बनवाए हैं ना। मैंने कहा अच्छा, मुख्तलिफ जगह पे बनवाए हैं, चलें ये भी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुख्तलिफ जगह पे नहीं बनवाए हैं, शहर में बनवाए हैं। मैंने कहा कि शहर में चलें, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर अभी तक आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, वापस क्यों नहीं चले गए? मेरी माँ ने कहा कि हम उन घरों में जाकर क्या करेंगे बेटा, वो घर तो तुम्हारी बहनों के हैं, तुम्हारी बहनों की शादी हो गई है ना। मैंने कहा कि क्या मतलब? तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारी बहनों के लिए घर बनाया है, बिल्कुल नया घर बना के दिया है। उनके ससुराल में इतनी इज्जत होती है कि क्या बताऊँ। उनकी ससुराल वाले तो उनको हाथों पे उठा के फिरते हैं, और तुम्हारे तो वो गन गाते हैं कि ऐसा भाई जिसने बहनों को घर तक बना कर दिए हैं। मैंने कहा कि मुझे तो लगा था कि आप मेरे लिए घर बनाएंगी। मेरी माँ ने कहा कि ये घर है ना तुम्हारे लिए, अब और क्या बनाना है, बस 2 भाई हो, आपस में मिलजुल के रह लेना। मेरे दूसरे भाई की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन पता चला कि उसकी बीवी उसको छोड़ कर चली गई है, नाराज़ हो गई है। मैं अपने भाई से मिला, मैंने कहा कि ये सब क्या है? तो कहने लगा कि आप सब, मैं आपकी बीवी जितना सब्र तो नहीं होता। आपको तो पता है अम्मी ने इतना तंग किया कि वो बेचारी वापस चली गई, वापस आने से इनकारी हो गई। बेटा पैदा हुआ है मेरी, हाँ, लेकिन उसकी शक्ल देखने भी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा भाई बहुत परेशान लग रहा था। मैंने कहा कि ये सब कुछ कैसे हुआ? उसने कहा कि बस अम्मी के रवैये की वजह से, झगड़े और लड़ाइयों की वजह से हर कोई तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो भी मुझसे मिला और वहाँ से चला गया। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी माँ को ये घर बनाने के पैसे भेज रहा था, वो उसको इस घर को बेहतर करती, उसको पक्का बनाती, बड़ा सा बनाती, तोड़ के नया घर बनाती, लेकिन उन्होंने तो अपनी बेटियों के लिए घर बना दिए, और घर तो वही का वही खड़ा था। उसकी तो छत भी ऐसे लग रही थी जैसे टूट जाएगी। मेरी बीवी कहाँ थी, मेरे बच्चे कहाँ थे? पता चला कि वो तीनों ही कॉलेज गए हुए हैं। मैंने कहा कि ज़हर है, पढ़ाई कर रहे होंगी। मैंने अपनी माँ से ये भी कहा था कि मेरी बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाना, लेकिन जब वो वापस आए तो उनके कपड़े देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये लोग तो गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उन्होंने तो नीली कमीज़ें पहन रखी थी, इसका मतलब कि वो लोग गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ते थे। उनकी शक्लें भी अजीब बीमारियों जैसी लग रही थी। मेरा छोटा बेटा तो मुझसे गले मिल के रो पड़ा और कहने लगा कि शुक्र है बाबा आप आ गए, हमें लगा कि आप हमें भूल गए। दादी कहती थी कि आपने वहाँ पे शादी कर ली है और अब आप कभी वापस नहीं आएंगे। मैंने कहा कि क्या मतलब, ये बात क्यों की दादी ने? मैंने तो वहाँ पर कोई शादी नहीं की और मैं तुम लोगों के लिए वहाँ पर कमाने गया था। मैं बहुत सारे पैसे लेकर वापस आया हूँ। ये सच था कि मैं बहुत सारे पैसे लेकर आया था, क्योंकि मैं हमेशा के लिए आ गया था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरा घर वैसा का वैसा ही होगा और मेरे बच्चे अच्छे कॉलेज में भी नहीं पढ़ते हैं। ये सब कुछ तो मैंने मेरी माँ के हवाले किया था। आखिर जहाँ पर चल क्या रहा था। मैंने उन बच्चों से कहा कि तुम्हारी माँ कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि वो तो इस टाइम काम पे होती है। मैंने कहा कि कौन सा काम? तो उन्होंने सर झुका लिया। उन्होंने कहा कि पापा आप गांव के चौक में चले जाएं, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। मैंने कहा कि क्या मतलब, गांव के चौक में क्या काम करती है तुम्हारी माँ? अब मुझे बताने लगा था कि क्योंकि अभी मुझे आए हुए 1 घंटा भी पूरा ना हुआ था, तो मुझे ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही थी कि मैं हैरान रह गया। मेरी माँ ने घर बनाए तो मेरी बहनों की इस घर को बर्बाद करके रखा हुआ था। ये घर तो पहले से भी ज़्यादा खस्ता हाल लग रहा था। जानवर भी बिक चुके थे, दीवारें टूट रही थी। मेरे बच्चे, उन्होंने ना अच्छे कपड़े पहने थे और ना ही वो ढंग की जगह पर पढ़ाई करते थे। और पता चला कि आज घर में खाने में भी दाल बनी है। मैंने कहा कि क्या रोज़ दाल बनती है? तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि दादी कहती हैं कि मैं तो इन लोगों के लिए रोज़ रोज़ गोश्त नहीं पका सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं तो अपना सर पकड़ कर बैठ गया। मैंने कहा कि अब मेरी बीवी चौक में क्या कर रही है? उसके पास कोई फ़ोन तो नहीं था जो मैं उसे फ़ोन करता और कहता कि मैं आ गया हूँ। मुझे खुद ही चौक जाना था देखने के लिए कि वो वहाँ पर क्या कर रही है। जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे कुछ देर पहले ही बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी। ये खुशबू मुझे अच्छी तरह जाती। जब मेरी बीवी खाना पकाती थी तो ऐसी ही खुशबू आती थी, लेकिन ये खुशबू चौक से क्यों आ रही थी? अब मैं चौक में गया था, सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी आंखों में आंसू भर गए और इस तरह से बहने लगे कि जैसे मैं सदियों से नहीं रोया हूँ, क्योंकि सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। पहचान लिया था कि वो कौन थी जिसने चौक में तंदूर बना था।
जहाँ पर औरत बैठी रोटियां लगा रही थी और वहाँ पर कुछ मज़दूर और कुछ औरतें भी खड़ी थी जो अपने लिए रोटियां लगवाने आई थी, और कुछ मज़दूर एक तरफ बैठ के खाना खा रहे थे। वो औरत कोई और नहीं, मेरी बीवी थी। वो गर्म तनूर पे बैठी रोटियां लगा रही थी। उसके चेहरे पर आँच पड़ रहे थे। पहले बिल्कुल ही बूढ़ी और बीमार लग रही थी। मैं हैरान रह गया और वापस अपने घर आ गया। मुझसे एक कदम भी चला ना गया। मैं उसे पुकारता, क्या कहता कि मैं आ गया हूँ। घर आकर मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी। शाम हुई तो वो खुद ही वापस आ गई। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो मुझे देखकर हैरान रह गई। उसकी हालत कुछ अजीब सी हो गई। मुझे लगा था कि वो खुश हो जाएगी, लेकिन वो खुश नज़र नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये कैसे हालात हैं। मैंने क्या सोचा था और जहाँ पर क्या हो रहा है। तुम वहाँ पे बैठ के रोटियां क्यों लगा रही थी? किसने कहा तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए? कि तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं था? बताओ मुझे मेरी बीवी। यूँ तो कोई ऐसा मायूब काम ना कर रही थी कि मैं उसे डांटता, लेकिन फिर भी वो बैर तो बैठी थी। हमारे घर की औरतें पर्दे की कोई इतनी पाबंद नहीं थी, क्योंकि गांव में सब लोग अपने ही होते थे। लेकिन ये क्या कि मेरी बीवी एक तंदूर पे बैठी थी, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो खामोश हो गई और उसने कहा कि जिन बीवियों के शौहर उनको छोड़ के चले जाते हैं, फिर उनके साथ ज़माना ऐसे ही करता है। मैंने कहा कि मैं मर तो नहीं गया था, वापस तो आ गया हूँ। मेरी बीवी ने कहा कि अब वापस आकर भी क्या फ़ायदा, देर से आने वाली खुशी किस्मती भी दरअसल बदकिस्मती ही होती है, और मैं सबसे ज़्यादा बदकिस्मत औरत हूँ। मेरी बीवी ने इतना कहा और वहाँ से चली गई। शायद वो अपने आप को साफ़ करने और नहाने धोने चली गई थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। मैं फ़ौरन अपनी माँ के पास गया और मैंने कहा कि ये सब क्या है। मेरी बीवी तंदूर बनाकर बैठी है, मेरे बच्चे गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेरा घर बर्बाद हो चुका है। आखिर मेरे कमाए गए सारे पैसों से बाप ने क्या किया? 20 साल तक मैंने आपको पैसे भेजे, आप ये भरोसा किया, और आपने क्या किया? मेरी माँ ने कहा कि मैंने वही किया जो मैंने करना था। और 20 साल तक पैसे भेजने की बात कर रहे हो तो तुम्हें भी तो 25 साल तक हमने पाला पोसा, तुम्हारे लिए सब कुछ किया। वो खाते भी नहीं हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। पास जो ज़रूरत थी वो पूरी होती थी। ये क्या भूखे रहे हैं 20 साल से? क्या उनको खाना नहीं मिला है? उनको सब कुछ नहीं मिला? क्या पढ़ाई नहीं कर रहे? अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं। मैंने कहा, और मेरी बीवी जो तंदूर पे बैठी है, इतनी भी क्या मजबूरी थी उसकी? मेरी माँ ने कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से बैठी है, घर में उसका दिल नहीं लगता था, इससे बाज़ार में बैठने का शौक़ था। मेरी माँ ने ऐसी बात कही कि मैं कुछ बोल भी ना सकता था, लेकिन मैं बहुत गुस्सा हो गया। मुझे मेरी औलाद ने बताया कि दादी माँ को 1 रुपया भी नहीं देती थी, और हमारी फ़ीसें भी हमारी माँ ही भरती रही है। इस घर में सिर्फ खाना पकता है, वो भी बहुत ही बुरा। दादी ने कभी हमें 1 रुपया नहीं दिया था। उन्होंने हमेशा अपनी बेटियों के लिए सब कुछ किया, उनके लिए घर बनाए, उनके बच्चों की फ़ीस भी अदा दादी देती थी, और उनके घर की सारी चीज़ें दादी ने लेकर दी हैं। फूफो ऐश करती हैं, आराम करती हैं, और हम लोग जहाँ पर खबार हो रहे हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गया। इतने देर तक परदेश काटने का क्या नतीजा निकला? अपनी माँ पे भरोसा करने का क्या नतीजा निकला? ये क्या से क्या हो गया? मैं कुछ ना कर सका। मैंने इस घर को बेच दी और एक छोटा सा घर ले लिया, जहाँ पे मैंने अपनी अम्मी को एक कमरा दे दिया और कहा कि आप यहाँ पर रहें। अपने भाई को इसका हिस्सा दे दिया, अपना हिस्सा लेकर चला गया। मेरी माँ का कहना था कि मैं इतने छोटे से कमरे में नहीं रह सकती, तो मैंने कहा कि आपने रहना है तो रहें, नहीं तो आप को मुनासिब लगे आप कर सकते हैं। मैंने अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में डाला और अपनी बीवी को कहा कि अब वो ये काम नहीं करेगी। मेरी बीवी खुश थी, खामोश थी, कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जुल्म उसी के साथ हुआ था। मेरे पास उस वक्त तसल्ली देने के लिए अल्फाज नहीं थे। बस अब ज़िंदगी रह गई थी, मुझे उसी के साथ गुजारनी थी। ऐसा ऐसा वो नॉर्मल होने लगी, लेकिन मेरी माँ ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, उसे डरा के रखा था। तभी वो कहती थी कि सब ठीक है। इंसान भी बड़ा बेबस है। इस टाइम मैं ना जाता तो क्या करता, पर बेहतर ज़िंदगी की ख्वाहिश में ही तो गया था। पर वापस आया तो वही लोग मुझे परेशान हाल मिले जिनकी खुशहाली के लिए मैं वहाँ पर गया था। शायद मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, या मेरी ज़िंदगी के जितने भी साल पड़े हैं वो सब मेरी बीवी के हैं। मैं उसे छोड़कर दोबारा कभी कहीं नहीं जाऊंगा, पर पता नहीं मैं 20 सालों का अजाला कर पाऊंगा या नहीं। अब सोचता हूँ कि बीवी के साथ 2 वक्त की रोटी, रूखी सूखी
کھا لیتا، کم سے کم ہم ساتھ تو ہوتے۔ دوستو یہ پردیس کی زندگی بھی کسی کی اچھی ہوتی ہے ورنہ پیچھے گھر والے تباہ کر دیتے ہیں۔ کبھی کسی کی بیوی برباد کرتی ہے، کسی کی اولاد خراب ہو جاتی ہے یا کسی کے گھر والے سے تباہ کر دیتے ہیں۔ بس اللہ ہی حفاظت کرے، اور ہم سب پردیسی بھائی جو اپنے بچوں کے مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائے، آمین۔ دوستو کیسی لگی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔